Okay, so last we did picture box. For inserting the picture box, we will click on that. जिनको ओपन हो गया साइड बाय साइड करते जाओ, फिर अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिकल का. डू द प्रैक्टिकल साइड बाय साइड. कर लो ट्राई. So how you will place the control? Either by double clicking or by dragging it. So double click on this. So this is a picture box. I told you that it will set the margin area, the border area for the picture, right? So you can drag it. आपको जितनी भी picture place करनी है. So this is my picture. Okay, and when you will click on this control, see the name is picture box 1 by default. जैसे text box 1 by default आता है, label 1 आता है, the same way picture box 1. Okay, and these are the properties. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने करी है उस दिन? अच्छा, हमने ओवल शेप वाली की करी थी. इसमें यू कैन सेट द बॉर्डर फॉर अ पिक्चर. लुक हियर, द बॉर्डर स्टाइल इज गिवन कि आपको पिक्चर का बॉर्डर स्टाइल क्या देना है. देन द बॉर्डर यू कैन सेट डॉक. डॉक मीन्स whether you want to move or not. अगर आप उसकी पोजीशन लॉक करना चाहते हैं, हमने बाकी कंट्रोल्स में भी डॉक किया है, राइट? द सेम वे. This thing is clear. Now for taking a picture, we will click on this small arrow. ये triangle small वाले पे हम click करेंगे. So this will ask for the size mode. So these are the modes which are available. How you want to show your picture in the zoom mode, in the center image, the auto size, stretch image or normal, right? उसके ऊपर एक link आ रहा है choose image, right? So we will click on choose image. So this select resource dialog box will appear. From the select resource, you have to select a picture जहां से भी आपको import करनी है. So I want to import from my local resource. Here the local resource, any of these drive or the folder in my system. Okay, so import the picture by clicking on import. So these are the sample pictures available in my system. So you can use any like this. Okay, click on OK. See, the picture is enabled on the box. क्लियर है? पिक्चर कैसे लगानी है, आपको जितना भी साइज रखना है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो. यू कैन ड्रैग इट वेयर एवर यू वांट टू प्लेस इट. जैसे सपोज करो आप किसी कंपनी का फॉर्म बना रहे हैं एंड यू आर मेकिंग सम लोगो, तो ये एक मेरा एक एज अ लोगो भी एक छोटी सी इमेज एक्ट कर सकती है. एनी डाउट? क्लियर है पिक्चर कैसे लगाना है? इसकी जो प्रॉपर्टीज है, हियर इज द border style. So you can give a border style to your picture, fixed single or whether you want to give it a fixed 3D. So that will depend. Okay, किस पे क्लिक किया आपने? हाँ, आपके सिस्टम में कोई है पिक्चर? ऐसे तो नहीं, उस इंपोर्ट पे करना है आपने. वेट आ रहे, क्लिक ऑन इंपोर्ट फॉर इंपोर्टिंग. हो गया? यहाँ तक पिक्चर इंसर्ट हो गई है. आप अभी अंशिका इसके साथ देख लो. बाय द टाइम इज कमिंग. क्लियर है बच्चे? द नेक्स्ट, एडिंग शेप्स ऑन द फॉर्म. तो हमने ओवल शेप वाली की एग्जांपल करी थी, ट्रैफिक लाइट वाली. अगर हम रेड पे क्लिक करेंगे तो इट विल इंडिकेट अ रेड कलर, otherwise it will indicate yellow or a green. So you can make that with the help of the shapes. The tool is oval shape. So there are various shapes available and the properties are name, fill color and fill style. ढूंढो कहाँ पे टूल है. So under the visual basic power packs, you can see line shape, oval shape, rectangle shape. 3 shapes are available: line shape, oval shape and rectangle shape. आपका नहीं चल रहा मुझे, आपको मिली नहीं विशाल क्या?
जसलीन अब बताओ बच्चे, नाउ द वॉइस इज ऑडिबल। नाउ द वॉइस इज ऑडिबल। So what is the name of the control? Oval shape 1, right? कंट्रोल का क्या पे कोडिंग करना चाहते हैं? ओवल पे। ये हमारा कंट्रोल का क्या नेम है? ओवल शेप 1। कोडिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं? बटन 1 पे। So we will write oval shape 1, ओवल शेप 1। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है? वी वांट टू फिल कलर, हमें इसका कलर फिल करना है। सो डॉट फिल कलर इक्वल टू कलर डॉट रेड। जो भी कलर आपको लगाना है, सो यू हैव टू राइट इट लाइक कलर डॉट देन द नेम ऑफ अ कलर। ओके, नाउ वंस अगेन द सेम कोडिंग इज टू बी कॉपीड ऑन बटन 2, ओवल शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू कलर डॉट क्या आएगा? येलो। नाउ फॉर द बटन 3, कलर डॉट ग्रीन। राइट, क्लियर है बच्चे ये? और साथ साथ में व्हाट वी वांट टू डिस्प्ले, अगर हम बटन 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो साथ में ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में भी कुछ डिस्प्ले हो। तो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करने के लिए व्हाट वी विल राइट, टेक्स्ट बॉक्स 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, तभी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। राइट, सो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है। नाउ इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, so this is red color, or red color will get active. Whatever the message you want to print, you can simply have to write in this. Okay, क्लियर हो गया? ये आपको सेम मैसेज कॉपी करने है, बस कलर्स को चेंज करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन रेड लाइट सेज स्टॉप। नाउ द सेम इज टू बी कॉपीड फॉर ग्रीन एज वेल। टेक्स्ट बॉक्स 1 dot text, green says go. Now in the yellow one, yellow says to wait. All right, so let's run this now. So see, this is my output window for the application. The picture is coming. Now one oval shape is coming, 3 buttons are appearing, and 1 text box is appearing. Once I will click on the red button, so see, red light says stop, yellow says wait, green says go. अब किसने ये वाला साइड बाय साइड कर लिया है? देखो आपका कलर फिल वाली प्रॉपर्टी चल रही है, बिकॉज मेरी यहाँ पे नहीं चली है। फिल कलर वाला देखो, इट्स नॉट वर्किंग, मे बी सम द एप्लीकेशन कुछ फाइल कोई मिसिंग है। आप देखो आपका चल रहा है, इट्स ओवल शेप 1, now it will work. Let's see it again. No, अभी भी नहीं चला ये। बच्चे सी नाउ द कलर इज फिलिंग। आपको क्या करना है, जिनका नहीं चल रहा है, लुक केयरफुली, बट यू हैव टू डू इज सिलेक्ट दिस शेप। आपको जब भी शेप के अंदर फिल करना है, यहाँ पे देखो इसकी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी के अंदर there is a property called fill color. Okay, fill color में यहाँ पे आपको कलर व्हाइट फिल करना है, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट पिक कर रहा है। ओके, सो यू हैव टू टेक अ फिल कलर हियर एंड देन फिल, यहाँ पे आ रहा है फिल स्टाइल। फिल स्टाइल में भी आपका बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट हुआ होगा, सो यू हैव टू सिलेक्ट अ सॉलिड फिल, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट कलर नहीं फिल करना, हमें सॉलिड कलर फिल करना है।
So once you will set the solid, then the color will get filled. बन गई है ये एप्लीकेशन सबकी? Be quick. Yes, online students, are you doing it side by side? डबल क्लिक करो ना, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, जिस भी बटन पे कोडिंग करनी है सिंपली यू हैव टू डबल क्लिक, वहां पे कर्सर आ जाएगा। हाँ जी, आपको जिस बटन पे कोडिंग करनी है वहां पे डबल क्लिक करो बच्चे। फिल कलर प्रॉपर्टी वो हमें लिखनी है, हमें मैनुअली नहीं सेट करनी है। वी आर सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ कोडिंग। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज इनेबल हुई। नाउ अंडर द प्रॉपर्टी सेट द फिल कलर एज व्हाइट एंड फिल स्टाइल एज सॉलिड। ये दो प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है, फिल कलर एज व्हाइट एंड फिल स्टाइल एज सॉलिड। हो रहा है प्रांजलि? चल गया आपका? हो गया रन? बच्चे बी क्विक, आई हैव टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, सो बी क्विक। किसको नहीं क्लियर हुआ बच्चे पूछ लो। सॉलिड कर दो, फिल स्टाइल प्रॉपर्टी विंडो से उसकी सेट कर दो एज अ सॉलिड। क्या ब्लैक आ रहा है? क्योंकि आपने उसका फिल कलर ब्लैक लिया होगा ना, फिल कलर को व्हाइट ले लो। परीक्षा प्लीज शट द डोर बच्चे। हाँ जी, एनी डाउट? बन गई है सबकी? किसका हो गया इम्प्लीमेंट? गर्वित? प्रभजोत हुआ नहीं? रन करो यहाँ से फ्रॉम द टूल बार। Should I show you the coding? आ गए, तीनों कलर्स एक्टिव हो रहे हैं, मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। करेक्ट। जयंत कितना रह गया? आपको कोडिंग एक ही बार ही करनी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो बाकी बटन में और कलर्स को चेंज कर दो। नो नीड टू टाइप इट अगेन। किसको नहीं क्लियर हुआ बता दो बच्चे। एक पीछे राउंड लगा लो। क्या नहीं आ रहा? गो टू द विंडो मेन्यू, रीसेट विंडो लेआउट, you will get all the components. Window menu, reset window layout. Otherwise you can also take it from the view other windows में जाके toolbox, view menu other windows toolbox। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? द कंसेप्ट इज क्लियर? क्लियर हो गया सबको करना कैसे है? ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, variables. The next topic in Visual Basic is variables. So variables क्या होते हैं बच्चे? Variables are some memory location that are used to store the data. For example, आप मैथ्स में करते हैं x equal to 100. 100 क्या है? It's a value. x क्या है? Variable. जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो that is called a variable. So x here is a variable and 100 is its value. Okay. अब किस तरह का वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा? We have to define this thing. For example, अब x equal to 100 है तो ये क्या है? This is a integer value. Okay, but if I am taking n equal to some name, okay, so what is this? This is a string value. अगर मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रही हूँ like this, तो ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ।
So this is a data types. हम इनको क्या कहते हैं? Data types. Means X is a variable which is of type integer that is only allowed to store the integer values only. Integer values means positive, negative और whole numbers. It will not include decimal numbers. Integer की definition यही होती है, right? Next is n equal to Gagan. So Gagan means it is a string value. Alphanumeric data आ गया, alphabets आ गया. It's a string. So n is a variable which is of type string that is allowed to hold any string values. Similarly, z is a variable which is of type date of birth or the type date, which will allow us to enter the date or to allow us to store the date. तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करेगा. Our variable will store what type of data in it. So that will depend upon the data type we will choose. Look here now, everyone, look here. आपको डेटा टाइप और वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है. अब जैसे मैंने x, n और z ये वेरिएबल्स बनाए, but there is one statement in VB that is called dim. Dim is a statement in VB which is used to declare a variables. आपने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं? विद द हेल्प ऑफ अ dim statement. Dim for declaring a variable in VB. तो बनाएंगे कैसे? dim वेरिएबल का नेम रखोगे dim वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप, कि वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा हमें ये भी वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नाउ इफ आई वांट dim रोल नंबर. नाउ रोल नंबर किस तरह की डेटा टाइप है? किस तरह का डेटा स्टोर होगा? इंटीजर डेटा टाइप होगी क्योंकि इसने नंबर स्टोर करने हैं. अल्फाबेट्स तो रोल नंबर में स्टोर नहीं हो सकते, डेट भी नहीं आएगी. तुम क्या लेंगे? dim रोल नंबर एज इंटीजर. ओके, कैसे देंगे? dim रोल नंबर एज इंटीजर. सिंटैक्स क्या है? दिस इज अ सिंटैक्स, यू कैन अंडरलाइन इट फ्रॉम द बुक. dim वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप. अंडरलाइन कर लो पेज 99 पे. dim variable name as data type. dim statement is used to declare a variable in Visual Basic. उसके ऊपर वेरिएबल की डेफिनेशन मार्क करो. वेरिएबल refers to the memory location used to store data temporarily. Now variable has unique name. ये नहीं कि आप दो बार ये अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते. एक वेरिएबल का नाम ये होगा तो सेकंड का कुछ और होगा. इट कैन नॉट बी सेम, इट विल बी यूनिक नेम. ओके, विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ dim स्टेटमेंट. द डेटा टाइप्स आर इंटीजर which is used to store the integer values, string which is used to store the set of characters, date which is used to store a date and time. So you can look at the examples. dim marks as integer, dim name as string, dim date of birth as date. क्लियर हो गया वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं? पहले आपको वेरिएबल का नेम देना है, एज करके यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा, कि आप कौन से तरह का डेटा स्टोर करने वाले हो इस वेरिएबल में. तो वो कहां से पता चलेगा आपको? फ्रॉम अ डेटा टाइप. एनी डाउट इन द वेरिएबल्स डिक्लेरेशन? क्लियर है कैसे करेंगे हम? अब जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम करवाए लास्ट, आपने हमेशा इस तरह से कुछ दिया है. यू हैव रिटन इट लाइक दिस. जब भी हम कोई कोडिंग करते थे तो आप ऐसे करते थे. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हम 3 में मोस्टली हमने 3 में ही कोडिंग करी है. टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू आप क्या सेट करते रहो हमेशा? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. तो इसका क्या मतलब होता था कि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. यही करते थे. नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट लाइक दिस. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट 3 में कर रहे हैं, 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू a प्लस b. नाउ व्हाट इज a and b here? a and b आर दी वेरिएबल्स, लेकिन वो a और b की वैल्यू तभी पिक करेगा अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स
वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू किसमें साइन की होगी, इनटू अ वेरिएबल ए। क्लियर हुआ? है चीज वही है, सेम वही कंसेप्ट है। आप ऊपर वाली कोडिंग में क्या कर रहे हो कि आप पूरे के पूरे कंट्रोल की ही प्रॉपर्टी एज इट इज उठा रहे हो, डेटा वहीं से उठा रहे हो कंट्रोल में से। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। अगर न्यूमेरिक वैल्यू करनी है तो हम आगे वैल लगा देंगे, VAL। रिमेंबर नाउ द सेम थिंग। अब इस वाले में क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू इंस्टेड ऑफ एडिंग इट itself I am just putting this value into a variable a। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू को a में असाइन कर दिया। सिमिलरली b में मैंने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट की। और यहाँ पे a और b में डेटा आ गया, लेकिन a और b के डेटा को फिर मैंने ऐड करके किस में डाला, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। बट दिस प्रोग्राम विल नॉट वर्क until and unless you will not declare variables here। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि हमें पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, like this, dim a comma b as integer। a में टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू डाल दो, सो val will be there, val फंक्शन लगाएंगे हम। देन b के अंदर क्या डाल दो, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, सीधा a प्लस b। आप टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के लिए भी एक c वेरिएबल ले सकते हैं, यू कैन टेक इट एज अ c। ओके, तो c इक्वल टू a प्लस b भी कर सकते हो। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स 3 को इक्विवेलेंट c भी करना पड़ेगा फिर। क्लियर हो गया? फर्स्ट वाले में क्या है कि डायरेक्टली वी आर जस्ट एडिंग दी वैल्यू। सेकंड प्रोग्राम में हमने वेरिएबल्स की हेल्प से किया है। वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, डिम a comma b as whatever the data type you want to set। so this way we are going to set a data type, we are going to declare a variable। फिर आपने कंट्रोल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स में डालते जाना। वैल्यूज वंस ट्रांसफर्ड इनटू अ वेरिएबल, तो आपके पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए अलोंग विद इट्स वैल्यू। सिंपली यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला, एरिया ऑफ सर्कल बोला, जो भी आपको ऑपरेशन बोला आपने सिंपली उसके अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स लिए आपने उसको डिफाइन कर दिया। द वेरिएबल्स कंसेप्ट इज क्लियर। लास्ट रघबीर, बच्चे मैं क्या करवा रही हूँ, आप कहाँ पे देख रहे हैं? तो एनी डाउट इन दिस? वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर है? कौन सी स्टेटमेंट से डिक्लेयर करेंगे, डिव। तो पेज नंबर 99 पे देख लो, ये क्लियर हो गया सबको? टेबल इज क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे लुक एट दी फिगर 9.10। द कोड विंडो इज गिवन। यहाँ पे इन्होंने एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाला हुआ है। सो अंडरस्टैंड द कोडिंग क्लियरली। डिम रेडियस एज इंटीजर, रेडियस की वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो रेडियस एज इंटीजर लिया। डिम एरिया एज इंटीजर, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है तो इंटीजर में ही होगा। डिम सर्कमफ्रेंस एज इंटीजर, तो सर्कमफ्रेंस के लिए इन्होंने वेरिएबल लिया है CIR। लुक एट द एग्जांपल, बाद में आपको समझ नहीं आएगी फिर, ये बाद में आपने प्रैक्टिकल करके भी देखना है। ठीक है, ये आपने 3 वेरिएबल से क्लियर कर लिए, रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। रेडियस की वैल्यू वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से पिक करें, द वे आई हैव रिटन ना, a इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो उन्होंने a की जगह पे क्या वेरिएबल नेम लिया है, रेडियस, RAD। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट की वैल्यू वो रेडियस में पुट कर रहे हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाला, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मेरे ब्लॉक में रख दो, पाई आर रख दो यहाँ पे, कीप इट हियर। ओनली 2 नोटबुक्स यू आर कमिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? तो 9 कलेक्ट कर रख दो यहाँ पे। सो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, जो आपने एंटर करवाया फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स 1। क्लियर हो गया यहाँ तक कोडिंग सबको? अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस का, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस की वैल्यू हम ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स 1 से ले चुके हुए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? दिस इज द कोडिंग। अब देखो, अब बाद में उन्होंने क्या करना है, एरिया का आंसर और सर्कमफ्रेंस का आंसर डिस्प्ले करना है। तो दे हैव टेकन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। टेक्स्ट बॉक्स 2 में वो एरिया का आंसर प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि एरिया की वैल्यू को हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाल दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने a प्लस b की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 में डाल ली है ना, द सेम वे दे आर ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ एरिया इनटू दी जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है टेक्स्ट बॉक्स 2, और सर्कमफ्रेंस को वो डाल रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 3 में। क्लियर है कोडिंग? इजी?
नेक्स्ट कोडिंग देखो, बटन 2 पे कोडिंग क्या लगाई हुई है। बटन 2 पे कोडिंग है कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस आपने फिल करे हैं या फिर जहां पे आंसर डिस्प्ले हुआ आप उसको खाली करना चाहते हैं, यू वांट टू क्लियर इट, तो आप एक अलग से बटन बना लेंगे क्लियर। तो क्लियर पे कोडिंग क्या करी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में खाली ब्लैंक। मतलब जब हम ये बटन 2 क्लिक करेंगे, क्लियर वाला बटन क्लिक करेंगे, तो सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। एनी डाउट? ये क्लियर है बच्चे? अब देखो वीबी में ही मैं आपको बता रही हूँ, नाउ सी है, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक और बटन ले लिया, दिस इज अ क्लियर बटन जो आपको मैं अभी कोडिंग बता रही हूँ, अभी मैंने उसका नेम चेंज नहीं किया, इट्स अ बटन 4। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई वांट टू क्लियर टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, सो आई एम क्लियरिंग इट्स वैल्यू। ओके, सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस, so this is right, लेकिन जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी, ये मेरा क्लियर बटन है, so my text box will get erased, it will be empty, so this is the coding। क्लियर हो गया हमने क्यों एम्प्टी करे हैं? अगर आपको कुछ भी फिल करना है, so this is the way the text box values are changing, but I want to clear my screen now, so we can clear it from the another button। आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर सेट कर लो, जो भी आपको रखना है, and the coding for that is whatever the text box is there, आपने उसकी वैल्यू को खा, right? The concept is clear? So there will be a test in the second period now, so be prepared.